Hi everyone, this is Ayush back again with another video. In today's video, we are going to do a live mock test for some of the tasks that are PT पर task के according हम करेंगे, just like read aloud, repeat sentence, इस तरह से करेंगे और overall score check करेंगे. इस वीडियो सीरीज के अंदर जो भी अब मैं देने वाला हूँ उसमें आपको मैं यही बताऊंगा कि आप पर टास्क के अकॉर्डिंग कैसे बेस्ट कर सकते हैं और लाइव हम करके देखेंगे और हमारा रिजल्ट क्या रहेगा. सो आई वुड वांट एवरीवन टू प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड also share this video with your mates so that उनकी भी help हो सके. And apart from that, if you are new to this channel, you can definitely subscribe to it. Thank you so much and let's just enjoy the session, guys. So guys, let's start this video. And in today's video I'll be doing one of my favorite sections, और जो कई students का doubt भी रहता है, that is like the read aloud, how to do them and what are the basic tips and tricks, वो बीच में बताऊंगा मैं आपको. एक हम section wise नहीं, full test नहीं, हम question wise test करने वाले हैं read alouds को लेके. जो हमारा सबसे पहला टेस्ट होगा, like test 5 भी आप अपने APUNI के जो सब्सक्रिप्शन जिन्होंने लिया हुआ है वो जाकर चेक कर सकते हैं. उसमें जो भी क्वेश्चंस हैं उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे एंड विल फाइंड द डिफरेंसेस कि कैसे आपका स्कोर इंप्रूव हो सकता है. सो बी विद योर पेन एंड पेपर अगर आपको कुछ भी चीज नोट करनी पड़ जाती है. सो वेन एवर यू स्टार्ट एनी मॉक टेस्ट, मेक श्योर दैट आप अपना हेडफोन और माइक को जो चेक करें प्रॉपरली. जब आपके सामने रीड अलाउड आ जाए तो आपको मेन वर्ड्स को ध्यान से देखना, जैसे टेक अ ब्रेक, प्रोग्राम, एनकरेजेस, लास्ट तक बोलना है उसको, टीन्स साइंड अप, log off after they have been on the platform for a certain amount of time, always take pause on full stop. Starting Tuesday, the feature is available to any users between the ages of 13 and 18 based on how they self-reported when they signed up for Instagram. So हम start करते हैं उसको. Let's start it out and check. Take a Break is a program that encourages teens who have signed up for it to log off after they have been on the platform for a certain amount of time. Starting Tuesday, the feature is available to any users between the ages of 13 and 18 based on how they self-reported when they signed up for Instagram. So immediately, as soon as you are done, you have to go on to the next question itself, so that आपका जो टाइम है वो फ्लुएंसी के अंदर सेव हो पाए, राइट. और एज रीड अलाउड्स भी कहते हैं कि आपको जितना लाउडली आप उसको नेचुरली बोल पाए उतना बेहतर है आपके लिए. So people know resemble most basic social characteristics. Try to break the word. Gender, educational background, although friends, similar people unaware because they did not pick friends. Similarity, our social connections depend foremost whom we get to meet, depend social context we enter activities engage in. The people we know resemble us in the most basic social characteristics such as gender and educational background. Although our friends tend to be similar, many people are unaware of this because they did not pick their friends for their similarity. Our social connections depend first and foremost on whom we get to meet. This depends on the social contexts we enter and the activities we engage in. So as you have seen कि बीच में आपको फंबल होने का अगर लगता है कि होने वाले हैं, आप ध्यान मत दीजिए उस पे. तो यहाँ पे हमारे पास 5 रीड अलाउड्स होंगे, देखेंगे उसमें क्या डिफरेंट डिफरेंट स्कोर्स हमारे रहने वाले हैं. सो आपको अच्छे से वर्ड्स को पढ़ना है. एक वे होता है कि पूरा सेंटेंस पढ़ें, एक वे होता है कि केवल मेन वर्ड्स पढ़ें. और जो वन लाइन स्ट्रेटजी की तरफ जा रहे हैं लोग, मैं उनको रिकमेंड नहीं करूंगा. हाँ, अगर उनकी रीडिंग अच्छी है और वो और मॉड्यूल्स में अच्छे नंबर ले सकते हैं तो वो रीड अलाउड में वन लाइन स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट दिस आउट एंड हैव अ लुक एट दैट. Dark matter is an elusive substance that provides the skeleton for what cosmologists call the cosmic web, the large scale structure of the universe that, due to its gravitational influence, dictates the motion of galaxies and other cosmic material. However, the distribution of local dark matter is currently unknown because it cannot be measured directly. So अभी ये देखिए अपना कितना लंबा सेंटेंस था, मैंने फिर भी एक ब्रीथ में उसको बोला. यही 35 सेकंड्स आपको जो मिलते हैं वहां पर चेक करना है कि आप कितनी लॉन्ग ब्रीथ को ले सकते हैं. हालांकि प्रैक्टिस करके चलिए. मेरी एक सिंपल टेक्निक रहती है, फुल स्टॉप पे पोज लेना है, आई मीन ब्रीथ लेना है. तो यहाँ पे प्रिंसिपल वे, माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टडीज, हम माइक्रोबायोलॉजिस्ट बोलते हैं, इट्स माइक्रोबायोलॉजिस्ट. ऑलवेज स्ट्रेस द वर्ड एट द स्टार्ट. एंड में आप रबड़ बैंड जैसे होता है उसकी तरह आप उसको यूज करेंगे. स्टार्टिंग में स्ट्रेस देना है और वापस एकदम से लेकर आना है. Microorganisms, observing microscope, magnification microscope, magnifying glass, consisting. The principal way a microbiologist studies microorganisms is by observing them through a microscope. A microscope is a device that enlarges objects using a process called magnification. The simplest form of a microscope is a magnifying glass consisting of a single lens. Some glasses are slightly bent at the bottom, causing a magnifying effect if held at a certain height over an object. So this one is the last that we have for the moment. मेन वर्ड्स को देखकर चलते हैं. न्यूरोसाइंस ट्रेडिशनली बीन क्लास्ड एज अ सब डिवीजन ऑफ बायोलॉजी. प्रॉपर कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स को यूज कीजिए.
उनके अच्छे से साउंड्स को यूज करना है। रिसर्चर्स से न्यूरोसाइंस मीन्स सेम न्यूरोबायोलॉजी, न्यूरोबायोलॉजी लुक्स बायोलॉजी नर्वस सिस्टम, neuroscience refers anything nervous system, neuroscientists involved much wider scope of fields, evolutionary, medical aspects, nervous system. So let's check it out. Be louder. Neuroscience has traditionally been classed as a subdivision of biology. Many researchers say that neuroscience means the same as neurobiology. However, neurobiology looks at the biology of the nervous system, while neuroscience refers to anything to do with the nervous system. Neuroscientists are involved in a much wider scope of fields who study the evolutionary and medical aspects of the nervous system. So this is how we do our read alouds, and I'll check my result, just it will be coming. But उससे पहले मैं आपको गाइस जितना तक रिजल्ट आता है मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि आपको अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए कहाँ कहाँ पर फोकस करना चाहिए। देखिए, रीड अलाउड्स तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीड अलाउड्स में जितने मार्क्स आपको मिलते हैं शायद और कोई मॉड्यूल आपको इतने मार्क्स आई मीन फ्री में नहीं देता, और भी कोई भी मॉड्यूल लगा ले, टास्क लगा ले। तो रीड अलाउड्स पे फोकस कीजिए, जैसे मैंने बताया है। वन लाइन स्ट्रेटजी फॉलो करनी है तो जरूर कीजिए अगर आपके अदर एस्पेक्ट्स अच्छे हैं, अदरवाइज ट्राई मत कीजिएगा इसको। रिपीट सेंटेंस आपको करने चाहिए, क्योंकि रिपीट सेंटेंस से आपके लिसनिंग में भी अच्छा स्कोर जा रहा है और स्पीकिंग में तो आ ही रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्राइब इमेज, रिटन, लेक्चर, आंसर शॉर्ट क्वेश्चन, दे आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्टिल आप उसको अच्छे से कीजिए। राइटिंग में ऐसे और रिटन टेक्स्ट को आप अपना टेम्पलेट्स या जो भी आपके ट्रेनर्स ने आपको बताया है कि एक लाइन लिखनी है, कहाँ से उठाकर लिखनी है, कैसे लिखनी है, अदरवाइज मेरी एक वीडियो भी बनी हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। रीडिंग के लिए रीडिंग राइटिंग ब्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें आपने सेलेक्ट करना है कि बेस्ट कौन सा होगा, और वो सिलेक्ट तभी होगा जब आपकी वोकेबुलरी अच्छी होगी। उसके बाद रीडिंग फिल इन द ब्लैंक्स आप ट्राई कर सकते हैं। इसमें प्रॉपर एक रूल लगता है मेरी तरफ से, दैट इज जीएसटी, मतलब ग्रामर, सेंस और तुक्का। सो ग्रामर और सेंस को लगाएं, तुक्का तो आप लगा ही रहे हैं हालांकि, बट ग्रामर देख लें उसमें पहले क्या होती है, फिर उसके बाद सेंस। हम आने वाली और वीडियोस के अंदर वन बाय वन क्वेश्चंस को करेंगे, रैंडम क्वेश्चंस जो होंगे, एंड विल चेक आवर रिजल्ट्स लेटर ऑन। ऐसे ही फिर हम सेक्शनल टेस्ट्स भी करने वाले हैं सीरीज में, और मॉक टेस्ट्स भी। अब आने वाली डेली की आपको सीरीज के अंदर शायद 1 या 2 दिन के गैप पे डेली वीडियोस मिलेंगी गाइस। I was not able, so right now I'm fully comfortable to share the videos. I just want everyone to please subscribe to this channel, ताकि फ्यूचर में कोई भी आपको वीडियो जो आ रही है वो प्रॉपरली मिल पाए, और साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस आपके होम स्क्रीन पर आती रहें। उसके साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं लिसनिंग के अंदर यू गेट लाइक फिल इन द ब्लैंक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशंस, रामबाण जिसको बोलते हैं आपके राइटिंग का। राइटिंग खुद इतना स्कोर अपने मॉड्यूल से नहीं देती जितना वो राइट फ्रॉम डिक्टेशन से दे देती है, क्योंकि ऐसे और रिटन टेक्स्ट को मिला के 22 या 23 मार्क्स बैठते हैं। बट राइट फ्रॉम डिक्टेशन के अंदर अगर हम बात करें, बेसिकली कहीं ना कहीं 25 से लेकर 35 के बीच में मार्क्स आपको राइटिंग में मिल जाते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं और एक क्वेश्चन में कितने वर्ड्स आ रहे हैं। तो मेक श्योर आप अपना स्ट्रक्चर खराब ना करें, बट स्टिल इसके लिए भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, हालांकि आगे भी बनाएंगे। सो लेट्स चेक इट आउट कि हमारा स्कोर आया है या नहीं, या कितना आया है, कुछ आइडिया मिल जाए ताकि हमें। स्टिल इट्स गेटिंग चेक्ड। ओके, सो वी हैव गॉट इट, इट्स 88% करेक्ट एंड टारगेट स्कोर वाज 86, सो आवर स्टेटस इज गुड। लेट मी चेक इट आउट। फर्स्ट वन वाज 80। हमने कहाँ पे लैग किया एक बार चेक। टेक अ ब्रेक इज अ प्रोग्राम दैट हमारे में देख सकते हैं कंटेंट पूरा है, प्रोनाउंसिएशन 75 है और फ्लुएंसी 81 है। बीच में कुछ पॉजेज आए, स्पीड मेरी ठीक थी, ज्यादा तेज नहीं थी। स्ट्रेस देना मेरा कुछ वर्ड्स पे बनता था, बट यहाँ पर मैं बिना माइक्रोफोन के, हेडफोन के कर रहा हूँ, बट आप मत ट्राई कीजिएगा बिना हेडफोन के। तो यहाँ पर 79 स्कोर आया हमारा, दैट्स नॉट बैड। मतलब जो 75 प्लस स्कोरर हैं या 65 प्लस स्कोरर हैं उनको इजीली ये ट्रिक्स अप्लाई करनी चाहिए। देन उसके बाद ये इनकी प्रोनाउंसिएशन दे रखी है जो मैंने शायद सही नहीं बोली है उनके अकॉर्डिंग। पॉजेस भी आए हैं, बट दैट्स ओके, आपको फ्लुएंसी मेंटेन करके रखनी है, गलत होता है वर्ड कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद दिस वन 77 एंड दिस अगेन गॉट 85, सो लेट मी चेक इट आउट व्हाई 85। यही चीज आपको चेक करनी कि इसमें मुझे इतना स्कोर क्यों मिला, प्रिंसिपल वे अ माइक्रोबायो। यहाँ पे मेरी प्रोनाउंसिएशन ज्यादा क्लियर थी, फ्लुएंसी ऑलमोस्ट मेरी 79 प्लस ही रही है, बट लेस देन 85 रही है अभी तक। बट आपको ध्यान रखना है कि प्रोनाउंसिएशन भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और 77 अभी देखिए कि आप ओवरऑल मेरा स्कोर जो दे रहे हैं यहाँ पे करेक्टनेस में 88% दे रहा है, मतलब लगभग हमें जो करना है आउट ऑफ 100 अगर बात करें तो 88 के आसपास बैठता है ये स्कोर। सो दैट्स नॉट बैड एक्चुअली। तो आपको ध्यान रखना है कि रीड अलाउड्स में केवल एक ही चीज मैटर करती है, दैट इज योर स्पीड। और स्पीड का मतलब ये नहीं कि आप बहुत तेज बोले, मॉडरेट स्पीड में बोलना है, फ्लुएंटली बोलना है, पॉजेज नहीं लेने हैं बीच में। और पॉज लेने का सिर्फ एक ही मकसद है आपका, दैट इज ब्रीथ, ताकि आप नेक्स्ट सेंटेंस को बोल पाए।
सो गाइज, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही है, एंड इफ यू रियली वांट एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, don't worry, I'm always there with you as Ayush PT Elixir. You can go ahead and please do not forget to put a thumbs up on the videos and share this channel with your friends so that उनकी भी हेल्प हो सके. So definitely आपको बहुत सारी वीडियोस मिलने वाली हैं, उस पर मैंने जो डाली हुई हैं, आप वहाँ से काफ़ी हेल्प भी ले सकते हैं, राइट. तो इंस्टाग्राम पे जा सकते हैं, आप यूट्यूब पे जाइए, ये मुझे भी मोटिवेट करेगा और ऑब्वियसली आपको भी नया नया कंटेंट मिलता रहेगा. सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग इन दिस वीडियो. If you have really any kind of doubt, don't worry, I'm always there. You can DM me and you can also put in the comment section as well. So thank you so much and have a good day.